right? Now you can see here, when we talk about experiment related to natural product, right? So many experiments uh, in natural product. Point is that how do we isolate our natural product, right? Important thing which we do in our lab, that is how do we isolate our natural product, right? How do we isolate our natural product? So different types of natural product we isolate with different types of methods, right? For example, first of all, the important thing is that we should we should extract our natural product, right? So extraction, I have already discussed the point in alkaloid, isolation of alkaloid, right? So normally same types of method we use for uh, different types of natural product, or for isolation of different types of natural product, right? Because I already told, in a case of synthetic chemistry, people synthesize compound, right? People synthesize compound in their lab, right? And then they explain their structure, right? Because we know how do we synthesize that compound. But in case of, when we talk about natural product, right, when we talk about natural product, so then there is important thing we don't know, right? We have no idea about the structure of compound. So how do we know about the structure of compound? Why this plant is useful for medicine, why that plant is useful for medicines, right? What is reason behind that? So we people already know the reason behind that is a chemical constituents, and that chemical constituent is called phytochemical, right? That chemical constituents is called phytochemical. Now the point come, how do we separate that phytochemical, right? So then the method normally we use, that is extraction method, right? And in extraction method, most important apparatus which normally we use in present time, that is Soxhlet apparatus, right? You can see this is Soxhlet apparatus right here. You can see this is round bottom flask, and it is connected with, right? It is a round bottom flask, you can see, right? Here boiling flask or round bottom flask. Here we take extraction solvent. Extraction solvent, it depend on us, right? What types of extraction solvent we need to use, right? It depend on us, right? What types of extraction? Sometimes we use water, right? Highly polar solvent, and that is, very easily available, right? So sometimes we use water as a extraction solvent. Sometimes we use ethanol or methanol as a extraction solvent. If we want to separate, right, polar compound, if we want to separate polar compound, right, then maximum time we use ethanol, methanol, or water as a solvent, because they are highly polar solvent, right? And if you want only separate oil, right, non-polar compound, then we can use petroleum ether, or we can use hexane. They are non-polar solvent, right? So extraction solvent depend on the types of compound which you want to separate, right? It depend on the types of compound which you want to separate. If you want to separate non-polar oily material, then you can use non-polar solvent like petroleum ether, like petroleum ether or hexane, right? But if you want to separate polar compound like alkaloid, right, then you need to use ethanol or something else, right? If you want to separate glycosides also, then you can use water as a extraction solvent, right? You can see this round bottom flask we use for extraction solvent, right? After that, you can see this is extraction chamber. Actually, it is very important part of Soxhlet apparatus, right? Extraction chamber. Here we fill the plant material. Here we fill the plant material, right? So plant material, you people already know. If we take, suppose that plant leaf, right? For example, if you take ashwagandha, tulsi, whatever, right? So you take plant leaf. First, you take plant leaf, right? Then you need to dry those leaves, right? And after that, you need to grind, right? Convert that into a powdery like material, right? And after proper washing that material, we take that material here in this place, right? And this is you can see, this is called extraction chamber. This is called extraction chamber, right? And after that, this is a condenser. This is a condenser, so that when vapor go up, right, so then they come back in form of a condensed liquid material, right?
So this is condenser. You people already know about water condenser, right? You people already know about water condenser. Here we here up the cold water, and then here go down the hot water, right? So this is condenser, and this is also called water condenser. So three things are important in Soxhlet apparatus. First one is round bottom flask, right? Second one is Soxhlet chamber, and third one is condenser, right? So you can see here very important and small pipeline like things, right? You can see small thin pipeline, right? Here you can see a small thin like a pipeline, right? Siphon arm, this is called siphon arm, right? You can see this pipeline, it is very important, right? So actually when we increase temperature and when we apply heat at the solvent, then solvent convert into their vapors, right? तो जब आप solvent को क्या करते हैं, heat apply करते हो, तो solvent आपका methanol है, ethanol है, water है, वो vapors में convert होता है. Then vapors come inside this pipeline, right? Vapors come inside this pipeline. Vapors इस pipeline से अंदर जाता है, and then right they cannot go up because you know here water condenser, यहाँ पे water condenser है, जैसे vapor ऊपर जाएगी तो water condenser से then they come back here in this extraction chamber. इस extraction chamber में आएगा, and then right this liquid come back to the round bottom flask, because you see here this is pipeline, right? And that pipeline connected further with a round bottom flask, right? So this type of thing, right? Around 74 hour or more than that required for complete extraction process from Soxhlet apparatus, right? तो अगर आपको Soxhlet apparatus से किसी plant का एक्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए मिनिमम आपको 72 आवर्स का टाइम चाहिए पड़ता है, राइट? तो सबसे पहले आप प्लांट एक्सट्रैक्ट को, यहाँ पे सॉल्वेंट को लोगे, यहाँ पे आप प्लांट मटेरियल लोगे, आपका रॉ जो प्लांट मटेरियल है उसको आप यहाँ लोगे, राइट? देन आप क्या करोगे, इस सॉल्वेंट को इवेपोरेट करोगे, उसकी वेपर्स इस पाइपलाइन से जाएंगी, देन राइट यहाँ ऊपर कंडेंसर होगा, जो वेपर ऊपर नहीं जाएगी, द वेपर मिक्स विद योर रॉ मटेरियल, राइट? जो भी आपका रॉ मटेरियल है, लीव्स की जो आपकी जो पाउडर है उसके साथ मिक्स होगा, एंड देन यहाँ पे हम कॉटन का यूज करते हैं सो दैट कि ये जो मटेरियल है वो बाहर ना आ जाए, राइट? एंड यहाँ से फिर वो मटेरियल क्या होता है, इसका जो लिक्विड होता है जो भी, बिकॉज वेपर्स जैसी आपके मटेरियल से रिएक्ट करेंगी तो जो भी आपका कंपाउंड होगा उसमें, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट होगा वो उसके साथ डिसॉल्व हो जाएगा, and then they come back in this round bottom flask, right? So this process continue go for 72 hours, right? ये जो process होगी ये around 72 hours के लिए continuously चलेगी, right? More than that it depend on condition, right? किस तरह का आपको compound separate करना है उस तरह का आप time लोगे. Average जो time होता है इसका 72 hours का time होता है, right? So this is how do we prepare extract normally for isolation of natural product, right? तो नेचुरल प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए हम नॉर्मली इस एपरेटस का यूज करते हैं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन एपरेटस, राइट? नाउ वी कैन स्टार्ट. एक तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड देन यू कैन सी अदर इंपॉर्टेंट थिंग आल्सो, राइट? यू कैन सी अदर इंपॉर्टेंट थिंग आल्सो व्हिच वी नॉर्मली यूज फॉर एक्सट्रैक्शन. कॉलम, राइट? कॉलम भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट? Column, because column we use for separation of and for separate your natural product. So natural product was once you prepare their extract from Soxhlet apparatus. एक बार आपने Soxhlet apparatus से अगर आपने किसी भी प्लांट का एक्सट्रैक्ट बना दिया तो उस एक्सट्रैक्ट, बिकॉज यू पीपल नो इन एक्सट्रैक्ट मोर देन वन कंपाउंड और मेनी कंपाउंड्स, राइट? मेनी नेचुरल प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट लीफ और प्लांट रूट और प्लांट बार. प्लांट की लीफ की बात करो आप, प्लांट की रूट की बात करो आप, प्लांट की बार की बात करो आपका, देयर आर मेनी फाइटोकेमिकल, राइट? वहां पे बहुत सारे फाइटोकेमिकल होंगे, राइट? देयर में भी आपको पता है, देयर में भी सेलुलोज, राइट? बिकॉज ग्रीन कलर का जो होता है आपको पता है सेलुलोज होता है उसमें, राइट? और भी उसमें ग्लाइकोसाइड्स हो सकते हैं, राइट? बहुत सारे कंपाउंड्स उसमें क्या होते हैं, मिक्स होते हैं. दैट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, दैट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ कंपाउंड. Now the important point, how do we separate, right? If you want specific alkaloid separation from a plant, then how do we separate that compound? Now the point come, how do we separate that compound? तो उसके लिए then we use column chromatography, right? Very famous chromatography होती है, right? And that is called column chromatography, जिसका हम क्या करते हैं, normally use करते हैं. अब column chromatography में क्या होता है, ये column होता है, right? Here we take adsorbent
सिलिका जेल और नॉर्मली वी यूज टीएलसी, तो आप लोगों को पता ही है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए, राइट। तो उसमें पाउडर लाइक मटेरियल होता है, राइट, एंड इसमें क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है। टीएलसी में तो आप पाउडर लाइक मटेरियल का यूज करते हो, और इसमें आप क्या करते हो, सिलिका क्रिस्टलाइन लाइक मटेरियल, राइट। तो पहले आप इस कॉलम को क्या करते हो, कंप्लीटली फिल विथ सिलिका जेल एज ए एडजॉर्बेंट along with योर सॉल्वेंट, राइट। सॉल्वेंट नॉर्मली आप किसको लेते हो, हेक्सेन या पेट्रोलियम ईथर, नॉन पोलर सॉल्वेंट को सबसे पहले आप लेते हो, राइट। तो आपने इस कॉलम, पहले तो सबसे पहले सैलरी बनानी पड़ती है, सैलरी बनानी पड़ती है किसकी, आपकी सिलिका जेल की। आपको क्या करना है, बीकर में सबसे पहले आपने क्या लेना है, आपने हेक्सेन और या पेट्रोलियम ईथर, दोनों में से भी जो भी है, बोथ आर नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वो ले लेने हैं। और उसके बाद उसमें आपने क्या डाल देना है, सिलिका जेल डाल देना, राइट। और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली उसमें क्या करना है, मिक्स कर देना है, सो दैट देयर शुड बी नो वन एयर बबल्स, राइट। इस तरह से आपने फाइनली उसको मिक्स करना है, सो दैट देयर शुड बी नो वन एयर बबल्स, उसमें एक भी एयर बबल नहीं रह जाए, क्योंकि अगर एयर बबल होगा तो फिर आपका कॉलम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। वंस यू प्रिपेयर दैट प्रॉपर सैलरी, राइट, तो देन यू कैन, ठीक है ना, उसके बाद आपने इसको पोर्ट कर देना है, इस कॉलम में आपने इसको डाल देना है धीरे धीरे करके। वंस द कॉलम इज प्रॉपर्ली फिल, राइट, एक बार इस सैलरी से कॉलम प्रॉपर्ली फिल हो गया, राइट, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2/3 पार्ट आप क्या कर दो, 2/3 पार्ट कॉलम का प्रॉपर्ली पैक कर दोगे। एंड देन यू ऐड दियर एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट बनाए हैं उस एक्सट्रैक्ट को आप उसी सिलिका जेल में थोड़ा मिक्स करके, राइट, उसके बाद इसको यहाँ डाल दोगे आप, राइट, इसको यहाँ पे इस तरह से पैक कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये डाल दिया, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट पैक कर दिया, एक्सट्रैक्ट आपका है, ये एक्सट्रैक्ट आपने इसमें डाल दिया। एक्सट्रैक्ट, वंस यू टेक दियर एक्सट्रैक्ट, देन यू कैन सी नेक्स्ट स्टेप, राइट। आपका जो सॉल्वेंट है, आपका जो सॉल्वेंट है, राइट, डिपेंड ऑन डिफरेंट पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, एक एक पोलरिटी के हिसाब से आपने सॉल्वेंट इसमें डालना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल, स्टार्ट फ्रॉम नॉन पोलर सॉल्वेंट, दे में बी हेक्सेन, सबसे पहले आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट को इसमें डालना स्टार्ट करना है। एंड देन यू कैन सी देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड इन दिस कॉलम, राइट। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड जो होंगे धीरे धीरे, सबसे ज्यादा जो नॉन पोलर कंपाउंड होगा वो सबसे पहले नीचे आएगा, देन उससे ऊपर वाला नॉन पोलर, देन, राइट, अकॉर्डिंग टू पोलरिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, वन बाय वन नेचुरल प्रोडक्ट विल इल्यूट फ्रॉम दिस कॉलम, राइट। तो एक एक करके अकॉर्डिंग टू उनकी पोलरिटी कितनी है, उस पोलरिटी के बेसिस पे एक एक करके कंपाउंड क्या होते हैं उस एक्सट्रैक्ट से आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। तो वहां पे क्रोमेटोग्राम बनेगा, राइट, प्रॉपर बैंड बनते, एक बैंड दिखाई देगा आपको, डार्क मे बी रेड कलर का, मे बी ब्लू कलर का, मे बी डिफरेंट कलर के, या मे बी वन इज डार्क एंड अदर इज लाइट, लाइक दैट, राइट। तो धीरे धीरे करके जब आप इल्यूट करोगे इन दिस, you can say that they may be conical flask or beaker, right। तो conical flask और beaker में धीरे धीरे करके आपको इस तरह से क्या मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शन, इन्हें कहते हैं फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन मिला आपको, राइट, इसमें, then after some time this is first fraction, then second fraction, then third fraction, then fourth। तो फिर क्या होता है, पोलरिटी को हम चेंज करते हैं, राइट। सबसे पहले आपने पेट्रोलियम ईथर को डाल दिया, राइट, उसके बाद आपने सपोज सबसे पहले हेक्सेन को डाल दिया, सपोज दैट, देन आपने पेट्रोलियम ईथर का डाल दिया, उसके बाद आपने थोड़ा और पोलरिटी इंक्रीज की, राइट, डाइथाइल ईथर को डाल दिया, फिर आपने क्लोरोफॉर्म को डाल दिया, फिर आपने क्लोरोफॉर्म प्लस मीथेनॉल का मिक्सचर, राइट, वो डाल दिया, राइट, डाइक्लोरोमीथेन डाल दिया, डिपेंड ऑन इल्यूटिंग सीरीज में, राइट, आप देखोगे सॉल्वेंट को पोलरिटी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। तो पोलर, नॉन पोलर से पोलर की ओर आपको क्या करना, पहले नॉन पोलर, फिर उससे थोड़ा ज्यादा पोलर, फिर उससे थोड़ा ज्यादा पोलर, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट को आपने क्या करना है, कॉलम में इल्यूट करना है। और उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड विल इल्यूट from that column, right। तो इस तरह से आपको डिफरेंट फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन, फोर्थ फ्रैक्शन, फिफ्थ फ्रैक्शन, सिक्स्थ फ्रैक्शन, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शंस आपको मिलते हैं, राइट। यू कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, राइट। जब आपको डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शन मिलते हैं, उन फ्रैक्शंस में किसी ना किसी में आपका क्या होता है, एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है, right। उसकी फिक्स पोलरिटी होती है, they may be isolate with petroleum ether, they may be isolate from ether, they may be isolate with chloroform, they may be isolate with a mixture of chloroform and methanol,
right? Maybe 20% chloroform and 80% methanol, maybe 80% chloroform and 20% methanol. तो इस तरह से different polarity पर different types के compounds आपको इस receiver में या conical flask में आपको मिलेंगे. Then you can go for crystallization. उसके बाद आप उनके crystallization के लिए जा सकते हो. क्रिस्टलाइजेशन हो गया, क्रिस्टल्स बन गए, उसके बाद आप उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हो विद हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप से एक्सट्रैक्शन होता है. समटाइम वी यूज स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, सम तो डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस हम यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेपरेशन के लिए, राइट? तो बहुत सारी टेक्निक है. ये देखिए आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ये भी एक इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है. यू कैन सी दिस, राइट? दिस फोटोग्राफ आल्सो, राइट? तो यहाँ पे देखिए ये आपका ऊपर से, ठीक है ना, यहाँ पे आपका ये देखो, ये सिल्का जेल, ये देखिए आप, दिस इज सिल्का जेल, पैक्ड हो गई सिल्का जेल, राइट? यहाँ ऊपर क्या रहते हैं, सॉल्वेंट है, देयर में भी पेट्रोलियम ईथर और हेक्सेन, राइट? ये नीचे से आपका कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें धीरे धीरे करके ये सॉल्वेंट इल्यूट होगा, राइट? ये वेट रहना चाहिए, कभी भी ये कॉलम क्या नहीं होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए. इफ द कॉलम इज ड्राई और देयर इज एनी एयर बबल, देन you cannot get pure compound, right? आपको कभी भी प्योर कंपाउंड नहीं मिलेगा अगर आपका कॉलम क्या हो गया, ड्राई हो गया, या आपके कॉलम में एयर बबल्स बन गए, राइट? तो हमेशा क्या होती है फिर वहां पे इम्प्योरिटी. तो कॉलम को बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, उसमें कंटिन्यूअसली इल्यूटिंग जो सॉल्वेंट है उसको डालना पड़ता है, राइट? तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे इसका स्टॉक, राइट? तो इस तरह से इसको ओपन करने के लिए रहेगा, राइट? ओपनर रहेगा. यहाँ पे आप देख कॉलम, पैक्ड कॉलम हो गया ये. यहाँ पे आपका ये ग्लास है कॉलम का, ये फनल है, फनल से आप धीरे धीरे करके सॉल्वेंट्स को डालते रहोगे, राइट? यहाँ पे इसके ऊपर वाले पोर्शन पे यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना जो एक्सट्रैक्ट है उसको ले लोगे, राइट? मतलब कुछ जो भी है आपका 100 ग्राम और वट, राइट? तो उसको यहाँ पे ले लोगे, राइट? तो इस तरह से कॉलम जो है इसका फेयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचुरल प्रोडक्ट, right? So these photographs actually very important in column in. So now we can start from our first experiment, right? These are basic methodology which we normally use, right? So many other thing also, right? So now we can start from our experiment number 1, right? तो अब हम experiment number 1 से start करते हैं कि हम क्या है, हमारा पहला experiment क्या है. To isolate compound piperine from black paper, राइट? ब्लैक पेपर से पाइपरीन को कैसे आइसोलेट किया जाता है. पाइपरीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन ए ब्लैक पेपर, राइट? जो ब्लैक पेपर होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट होता है, जो मेडिसिनली बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, वो पाइपरीन होता है, राइट? तो उस पाइपरीन को किस तरह से हम उस ब्लैक पेपर से आइसोलेट करेंगे, दैट इज एक्चुअली अवर एक्सपेरिमेंट, राइट? थ्योरी तो आपने बहुत सारी पढ़ दी है, अब हम प्रैक्टिकल के बारे में. Equipment apparatus, what types equipment or apparatus we required for this experiment? So you can see Soxhlet apparatus we have already discussed with RBF, round bottom flask के साथ आपको क्या चाहिए, Soxhlet apparatus चाहिए. Heating mantle for apply temperature, right? तो टेम्परेचर को और हीट को अप्लाई करने के लिए आपको क्या रखना है, उसमें एक हीटिंग मेंटल चाहिए. देन यू नीड बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, यू पीपल ऑलरेडी नो, ये तो चाहिए, राइट? conical flask, beaker. Then what types of material we required for this experiment, right? क्या material चाहिए हमें इस experiment को करने के लिए? एक तो आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, आपको इथेनॉल चाहिए, right? You need HCl, you need silica gel and you need ब्लैक पेपर, राइट? तो ब्लैक पेपर चाहिए आपको, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, इथेनॉल चाहिए, HCl चाहिए, सिलिका जेल चाहिए. दिस इज रिक्वायर्ड केमिकल, राइट? तो केमिकल रिक्वायर्ड क्या है, ये आपको केमिकल. Learning objective. Now what about learning? Student will learn the extraction of natural product from natural source piperine, right? तो पाइपरीन से किस तरह से हम नेचुरल प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं, ये आपको इससे लर्न होगा, ये आपको इससे पता चलेगा. एन एल्कलॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी ऑफ ब्लैक पेपर और लॉन्ग पेपर, राइट? तो जो स्मेल होती है उसकी, या जो उसका यूज होता है उस पाइपरीन का, राइट? वो क्यों होता है, क्या होता है? बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड, राइट? बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट, एल्कलॉइड होता है, जिसकी वजह से ये प्लांट क्या होता है, या जो ब्लैक पेपर होता है वो बहुत ज्यादा ही क्या होता है, यूजफुल होता है, और बहुत ही ज्यादा मेडिसिनली यूजफुल कंपाउंड. नाउ व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट? वी इंटरप्रेट दिस कंपाउंड.
यू कैन सी व्हाई वी कॉल दैट एल्कलॉइड। मैंने पहले कहा था एल्कलॉइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन होता है, मिनिमम एक नाइट्रोजन होगा, राइट, और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एंड यू नो नाइट्रोजन विद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिक कंपाउंड, अमीन और बेसिक कंपाउंड, राइट। तो इसीलिए इसको एल्कलाई और एल्कलॉइड कहा गया, राइट। तो दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ये इस कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया, राइट। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, यू कैन सी हियर, राइट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया कंपाउंड का, राइट। यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, रिंग है, दिस कनेक्टेड विद नाइट्रोजन, देन C डबल बॉन्ड O, राइट, कार्बोनिल ग्रुप है, CH डबल बॉन्ड CH, CH double bond CH2, right, then here benzene ring O CH2H, right. So this types compound we have already discussed in our theory classes, right, theory में हमने discuss किया है. Then Soxhlet apparatus we have already discussed. Now one by one about their procedure, right. अब इसका important क्या होता है एक्सपेरिमेंट में, उसका प्रोसीजर क्या, राइट. तो फर्स्ट 10 ग्राम grind 10 gram of black peppers to crush powder and extract with 95% ethanol in Soxhlet extractor, right. तो आपको 10 ग्राम ब्लैक पेपर्स लेना है, उसको आपने क्रश करना है, उसका पाउडर बनाना है। जैसे मैंने कहा प्लांट मटेरियल का आपको पाउडर बनाना पड़ता है। then you need to use then you start their extraction with 95% ethanol। जैसे मैंने कहा इथेनॉल और मेलियम इथेनॉल का यूज करते हैं जब हम किसी एल्कलॉइड का सेपरेशन करते हैं। तो यू कैन सी देन वी यूज 95% इथेनॉल इन Soxhlet apparatus, राइट। तो देन कंसंट्रेट विद एक्सट्रैक्ट ऑन वाटर बाथ। वाटर बाथ पे हम इसे फिर क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेट द एक्सट्रैक्ट विद वाटर बाथ एट 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेट द एक्सट्रैक्ट ऑन वाटर बाथ एट 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे क्या करते हैं, वाटर बाथ पे क्या करते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं Soxhlet apparatus पे, ठीक है ना। नाउ ऐड 10 ml ऑफ 10% एल्कोहलिक KOH, राइट। उसके बाद हमने 10 ml 10% alcoholic KOH to residue to allow the mix with the stand for few minutes, right। तो 10 ml आपने KOH जो होता है 10% KOH उसमें क्या कर देना, आपने मिक्स कर देना, राइट। जैसे आपने Soxhlet apparatus से, राइट, आपने उसका एक्सट्रैक्शन किया, उसके बाद उसमें आपने 10 ml 10% alcoholic KOH को मिक्स कर देना, राइट। केयरफुली डिकेंट दी सस्पेंडेड सॉल्यूशन फ्रॉम द सॉलिड डिपॉजिट, राइट। और उसके बाद जो आपका जो सॉल्यूशन होगा उसमें से आपने जो सॉल्वेंट होगा ऊपर का वो क्या कर देना, वो अपने डिकेंट कर देना, राइट। व्हेन द एल्कोहलिक सॉल्यूशन इज लेफ्ट येलो पाउडर नीडल सेपरेट आउट, राइट। तो जब एल्कोहलिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, राइट, वहां पे क्या होंगे, येलो कलर की नीडल्स की तरह, राइट, कंपाउंड्स आपको मिलेगा। एंड एक्चुअली दैट कंपाउंड इज योर पाइपरीन, राइट। वही कंपाउंड आपका क्या होगा, पाइपरीन होगा। and if you use 10 gram black pepper, तो as per experimental data the yield is 0.3 gram, right। तो 10 ग्राम black pepper से आपको 0.3 ग्राम पाइपरीन मिल जाएगा, right। then you need to record their melting point। फिर आपको उसका melting point देखना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट मैंने इससे पहले डिस्कस किया था वीडियो में, राइट। तो फिर मेल्टिंग पॉइंट apparatus की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे, बिकॉज ईच वन कंपाउंड हैव देयर स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट एंड दैट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आल्सो, राइट। तो कोई भी कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट उसका एक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो हम फिर क्लियर करेंगे आइदर दिस कंपाउंड इज पाइपरीन और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। नाउ after that you can see hydrolysis of piperine, isolation of pipric acid, right। तो isolation piperine का तो हो गया, अब pipric acid का कैसे करके करेंगे, right। the solution of 1 gram piperine in 1 ml of 10% ethanol ethanolic KOH for 90 मिनट। अब आपने रिफ्लेक्स करना है इसका, रिफ्लेक्स कंडेंसेशन करना है इसका, राइट, रिफ्लेक्स करना है 1 ग्राम पाइपरीन। अभी तो आपको 0.3 मिला, तो you need to, it means multiply that experiment 3 times, then you get 1 gram of piperine आपको मिलेगा। in 10 ml आपको उसको 10 ml 10% इथेनॉलिक KOH के साथ आपने उसको मिक्स करना है। एंड देन 90 मिनट्स तक आपने उसका रिफ्लेक्स करना है, रिफ्लेक्स कंडेंसेशन करना है, राइट। 90 मिनट तक आपने उसका रिफ्लेक्स कंडेंसेशन, so that will be completely or properly mixed, right, they will be properly mixed, right, properly वो मिक्स हो जाए, राइट। इवेपोरेट द सॉल्यूशन, उसके बाद आपने इवेपोरेट करना सॉल्यूशन को, इवेपोरेट द सॉल्यूशन टू ड्राइनेस बाय डिस्टिलेशन अंडर ए रिड्यूस प्रेशर, राइट। तो रिड्यूस प्रेशर की प्रेजेंस में, रिड्यूस प्रेशर की प्रेजेंस में, राइट, वी नीड टू रिड्यूस प्रेशर, राइट। एंड देन आपने उसको ड्राई कर देना।
बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, राइट। तो उस सॉल्वेंट को आपने प्रॉपर क्या करना है, ड्राई कर देना है, राइट। एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, राइट। रिड्यूस प्रेशर की प्रेजेंस में आपने उसका डिस्टिलेशन करना है, सो दैट यू विल गेट ए ड्राई कंपाउंड, राइट। सस्पेंड द सॉलिड पोटेशियम पाइप्रिनेट रिमेन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क इन हॉट वाटर एंड देन ऐड कंसंट्रेट HCl। और उसके बाद क्या करना है, उस सॉलिड जो पोटेशियम पाइप्रिनेट आपको मिला है, राइट, ये जो कंपाउंड मिला है आफ्टर डिस्टिल अंडर रिड्यूस प्रेशर, वो आपका क्या है, पोटेशियम पाइप्रिनेट है, राइट। एंड उसका फिर आपने क्या, रिमेनिंग डिस्टिल फ्लास्क हॉट वाटर के साथ, राइट, एंड ऐड कंसंट्रेट HCl। उसमें आपने हॉट वाटर ऐड करना है एंड देन ऐड देयर कंसंट्रेट HCl, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है। एंड देन यू नीड देयर मे बी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, राइट। वहां पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, राइट। Collect a yellow precipitate, wash it with ice cold water, pure pipric acid, right। तो उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कर दो, because you are using hot water and HCl, right। It means you are doing in acidic condition, आप उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, and then you will be get yellow precipitate, आपको उसके बाद yellow precipitate मिलेंगे, and wash it with ice cold water, ठंडे कोल्ड वाटर के साथ, आइस कोल्ड वाटर के साथ आप इसको वॉश करोगे, एंड देन यू विल गेट प्योर पाइप्रिक एसिड, राइट। तो पाइप्रिक एसिड आपको मिल जाएगा, राइट। पाइप्रिन आपको पहले मिल गया था, पाइप्रिक एसिड आपको इस तरह से मिल गया, राइट। तो दिस इज द मेथड हाउ डू वी सेपरेट पाइप्रिन एंड पाइप्रिक एसिड फ्रॉम ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से किस तरह से आप पाइप्रिन और पाइप्रिक एसिड को आप सेपरेट करोगे, दिस इज मेथोडोलॉजी रिगार्डिंग दैट, राइट। तो एट द एंड आपको क्या मिल गया, एक तो पाइप्रिन मिल गया और दूसरा पाइप्रिक एसिड मिल गया, राइट। स्कोप ऑफ रिजल्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस experiment and this result, you know, piperine or pipric acid जो होता है, that is very widely used as a medicine, that is very widely used as a medicine, बहुत ज्यादा यूजफुल मेडिसिन होती है, राइट। आप देखो कोई स्टेरॉइड्स होता है या कोई कंपाउंड्स होता है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसका आइसोलेशन जो होता है दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली, राइट। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, इसलिए ही उसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। इसलिए उसकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई होती है। इट इज वेरी वाइडली यूज एज ए मेडिसिन, राइट। तो ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है एज ए मेडिसिन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पैरामीटर क्या है, हाउ डू यू से यू गेट पाइप्रिन, प्योर पाइप्रिन और प्योर पाइप्रिक एसिड, राइट। कैसे करके आप पता चलेगा, राइट, बेस्ड ऑन दियर मेल्टिंग पॉइंट, राइट। मैंने इससे पहले डिस्कस किया था मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, कैसे करके हम मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, और डिस्टिलेशन के बारे में मैंने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, राइट। तो आप देखो मेल्टिंग पॉइंट, आपको मेल्टिंग पॉइंट से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाइप्रिन इज फिक्स, राइट। So if you check melting point and that is exactly same, so you can say your compound is exactly pipeline, right? And then next important thing, RF value, right? On the basis of retention factor, retention factors के basis पे भी आप क्या कर सकते हो, इसकी RF value को calculate कर सकते हो, right? तो इस तरह से ये experiment है, right? This is one of the important experiment. उसके बाद next जो experiment है, that is to isolate यूगेनॉल फ्रॉम क्लोव, क्लोव से किस तरह से यूगेनॉल को सेपरेट करते हैं, अवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू दिस, राइट। इसका जो आउटलाइन एंड प्रोसीजर है वो क्या है, वो भी आप देख सकते हो, राइट। इस तरह से इसका आउटलाइन है, दिस इज देयर प्रोसीजर, राइट। देन व्हाट अबाउट द रिजल्ट एंड सेड यूगेनॉल आल्सो, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल कंपाउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल कंपाउंड है, राइट। तो इसको कैसे सेपरेट करते हैं, इसके बारे में हम प्रोसीजर अभी डिस्कस करेंगे। इसमें मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट थिंग है, RF वैल्यू, रिटेंशन फैक्टर हियर आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे आपको क्या पता चलता है, फंक्शनल ग्रुप पता चलते हैं। तो व्हेन यू कंपेयर IR स्पेक्ट्रा ऑफ एग्जिस्टिंग यूगेनॉल, राइट, एंड योर कंपाउंड, if they are matching, right, you can say that your compound is exactly or your compound is pure, otherwise you can't say your compound. तो melting point हो गया, RF value होगी और IR spectroscopy, three important thing, based on that you can confirm your compound either eugenol or piperine or not, right। तो ये है, राइट। प्रिकॉशंस क्या रखने हैं वो भी इसमें डिस्कस करेंगे हम, हाउ डू वी, राइट, प्रिकॉशंस किस तरह से क्या क्या रखने हैं, राइट, उसके बारे में डिस्कशन है इसमें, राइट। नाउ थर्ड जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, टू आइसोलेट कैफीन फ्रॉम टी लीव, टी लीव से कैफीन को कैसे करके हम
सेपरेट करते हैं, उसमें क्या क्या मेथोडोलॉजी होती है, क्या क्या इक्विपमेंट और केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी, राइट। नाउ उसकी आउटलाइन क्या है, आउटलाइन और एंड प्रोसीजर क्या है, राइट, वी विल डिस्कस देयर प्रोसीजर एंड आउटलाइन आल्सो, राइट। देन this is about complete their procedure, right? Then you can see here, right, क्या क्या उसका वो है प्रोसीजर है। देन नेक्स्ट आवर प्रैक्टिकल इट इज रिलेटेड टू लाइकोपिन फ्रॉम टोमेटो, राइट। टोमेटो से आप लाइकोपिन को कैसे आइसोलेट करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्पिनोइड होता है। लाइकोपिन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्पिनोइड होता है, राइट। इट्स अ वेरी यूजफुल इन मेडिसिनल केमिस्ट्री आल्सो, राइट। मेडिसिन में इसका बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, राइट। इसके लिए हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो टर्पिनोइड होते हैं वो बेसिक जो उनका स्केलेटन होता है वो किससे बना रहता है, दैट इज बेसिकली फॉर्म फ्रॉम फ्रॉम आइसोप्रीन, राइट। आइसोप्रीन से रहता है, उसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होता है, राइट। ये इसका लाइकोपिन का स्ट्रक्चर है। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपिन, राइट, बीटा कर्टिन, राइट। उसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में, फिर उसके बाद आउटलाइन क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, वी विल डिस्कस देयर प्रोसीजर आल्सो, राइट। दिस इज अबाउट देयर प्रोसीजर, यू कैन सी, राइट, दीज आर द पॉइंट्स, राइट, अबाउट देयर प्रोसीजर आल्सो, राइट। तो प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उसके बाद these all points are related to their procedure, right, and then at the end results, right, RF value, melting point, UV spectroscopy. Within a minute the link will expire, we will rejoin at same link, right. And what types precautions we required for this